السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کے اندر میں آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی تخلیق کے بارے میں بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ساتھیوں آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو ساتھیوں میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ میں آپ کے لیے جب بھی نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھیوں، اس ویڈیو کو مزید شیئر کر دیں گے تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ آج کے کلاس کے اندر میں آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر میں ایک ناول نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہماری نصابی کتاب درخشاں حصہ دوم کے اندر میں ایک ناول نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کے اندر میں ساتھیوں ایک بستی ہے جس بستی کا نام کوریٹر ہے، یہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی تھی۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی تھی، اور وفات کب ہوئی؟ 28 دسمبر 1910 عیسوی کو، یعنی 74 سال کی عمر میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی وفات ہو گئی۔ یاد رکھیں گے ساتھیوں، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ 6 دسمبر 1836 عیسوی کو۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ہوئی۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی تھی۔ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ہوئی۔ وفات کب ہوئی؟ 28 دسمبر 1910 عیسوی کو، یعنی 74 سال کی عمر میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب اس دور فانی سے کوچ کر گئے۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب ہماری نصابی کتاب کے اندر میں ایک ناول نگار کی حیثیت سے شامل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو۔ ساتھیوں، یاد رکھیں گے آپ، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کی بستی کوریٹر میں ہوئی تھی۔ وفات کب ہوئی؟ وفات 28 دسمبر 1910 عیسوی کو ہوئی۔ والد کا نام سعادت علی ہے۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے والد کا نام سعادت علی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی تھا، نانا کا نام قاضی غلام علی شاہ۔ ساتھیوں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے والد کا نام سعادت علی تھا، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے والد کا نام سعادت علی تھا، اور نانا کا نام کا نام کیا تھا؟ قاضی غلام علی شاہ۔ نانا کا نام قاضی غلام علی شاہ، جن کا شمار اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ساتھیوں، نانا کا نام قاضی غلام علی شاہ، والد کا نام سعادت علی تھا، نانا کا نام قاضی غلام علی شاہ۔ والد کا نام سعادت علی تھا، والد کا نام سعادت علی تھا، نانا کا نام قاضی غلام علی شاہ، نانا کا نام قاضی غلام علی شاہ، جن کا شمار اپنے وقت کے بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ساتھیوں، یاد رکھیں گے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 6 دسمبر 1836 عیسوی کو۔ کوئی پوچھے اگر آپ سے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 6 دسمبر 1836 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی تھی؟ ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ کے اندر میں ساتھیوں ایک بستی ہے کوریٹر، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ وفات کب ہوئی؟ 28 دسمبر 1910 عیسوی کو۔ وفات کب ہوئی؟ 28 دسمبر 1910 عیسوی کو، 74 سال کی عمر میں۔ والد کا کیا نام تھا؟
सआदत अली। डिप्टी नजीर अहमद साहब के वालिद का नाम सआदत अली था, नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह, नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह। साथियों, काजी गुलाम अली शाह का अपने वक्त के बड़े बुजुर्गों में इनका शुमार होता है। साथियों, बहुत अल्लाह वाले थे। डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाना जान काजी गुलाम अली शाह का शुमार अपने वक्त के बड़े बुजुर्गों में होता था, अपने वक्त के बड़े बुजुर्गों में होता था। डिप्टी नजीर अहमद साहब का नस्बी सिलसिला बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। डिप्टी नजीर अहमद साहब का नस्बी सिलसिला किससे मिलता है? बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। साथियों, आप याद रखेंगे, नजीर अहमद की इब्तदाई तालीम गांव की मकतब में हुई। अपने वालिद सआदत अली से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। नजीर अहमद का नस्बी सिलसिला बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। साथियों, याद रखेंगे आप, नजीर अहमद का नस्बी सिलसिला बुजुर्ग अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। और नजीर अहमद साहब की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? नजीर अहमद साहब की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। साथियों, डिप्टी नजीर अहमद साहब की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, गांव के मकतब में। साथियों, वाली सआदत अली से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। साथियों, मौलवी नसरुल्लाह साहब से अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। याद रखेंगे, मौलवी नसरुल्लाह साहब नजीर अहमद साहब के उस्ताद हैं। साथियों, मौलवी नसरुल्लाह साहब डिप्टी नजीर अहमद साहब के उस्ताद हैं। आप इस बात को न भूलेंगे। डिप्टी नजीर अहमद साहब की इब्तदाई तालीम कहाँ पर हुई थी? गांव के मकतब में हुई। और वालिद सआदत अली से अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। साथियों, मजीद इल्म के लिए बताऊं, नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। याद रखेंगे आप, डिप्टी नजीर अहमद साहब 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। साथियों, डिप्टी नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक साथियों यहीं पर मुकीम रहे, यानी दिल्ली कॉलेज में मुकीम रहे। डिप्टी नजीर अहमद साहब 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और यहाँ पर 1853 ईस्वी तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। इसी दौरान उनकी शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से हो जाती है। साथियों, और 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो जाता है। डिप्टी नजीर अहमद साहब 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक साथियों दिल्ली कॉलेज में ही मुकीम रहे। डिप्टी नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। साथियों, आप इस बात को नहीं भूलेंगे, डिप्टी नजीर अहमद साहब 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे। साथियों, इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है। इसी दौरान मौलवी खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई और 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई। इसी दौरान मौलवी खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई और 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। इसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से नजीर अहमद की शादी हो जाती है और 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो जाता है। साथियों, फिक्र माश दामनगीर हुई तो वह हुसूल माश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपए माहवार पर मुअल्लिमी के फराइज अंजाम देने लगे। इस मुलाजिमत से मुतमईन न थे, इस्तीफा दे दिया और कानपुर में मदारिस में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। साथियों, आप याद रखेंगे, डिप्टी नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे। कब तक रहे साथियों? 1853 ईस्वी तक। इसी दौरान उनकी शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से हो जाती है। साथियों, और 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो जाता है। साथियों, याद रखेंगे आप, 1845 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद साहब दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से और 13 साल की उम्र होते ही साथियों इनके वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो जाता है। साथियों, फिक्र माश दामनगीर हो गई, वो तो फिक्र माश दामनगीर हुई तो वह हुसूल माश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपए माहवार पर मुअल्लिमी के फराइज अंजाम देने लगे। इस मुलाजिमत से मुतमईन नहीं थे, इस्तीफा दे दिया और कानपुर में मदारिस
اور کانپور میں مدارس میں ڈپٹی انسپیکٹر ہو گئے. ساتھیوں فکر معاش دامنگیر ہوئی تو وہ حصول معاش کے لیے پنجاب گئے, روزی روٹی کے لیے. ساتھیوں رزق کی تلاش میں پنجاب گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپے ماہوار پر معلمی کے فرائض انجام دینے لگے. اس ملازمت سے مطمئن نہیں تھے, استعفا دے دیا. ساتھیوں اور کانپور میں مدارس میں ڈپٹی انسپیکٹر ہو گئے. 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا. ساتھیوں آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ غدر کا واقعہ کب پیش آیا تھا. ساتھیوں 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ کب پیش آیا تھا. 1857 عیسوی میں 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا تو ساتھیوں یہاں سے بھی استعفا دے کر چلے گئے. اور 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا تو کانپور سے بھی استعفا دے کر دہلی چلے گئے اور تصنیف و تعلیم کی دنیا میں مشغول ہو گئے. یاد رکھیں گے آپ 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا. ساتھیوں آخرکار کانپور کے مدارس سے بھی استعفا دے دیے اور تصنیف و تعلیم کی دنیا میں مشغول ہو گئے. ساتھیوں کانپور کے مدارس سے استعفا دے کر وہ دہلی چلے گئے. کانپور کے مدارس میں انسپیکٹر کے عہدہ پر فائز تھے. ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں کانپور کے مدارس میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب انسپیکٹر کے عہدہ پر فائز تھے. یہاں بھی مطمئن نہیں تھے. ساتھیوں آخرکار انہوں نے غدر کے واقعات سے ہی پیش آیا. ساتھیوں وہ استعفا دے دیے اور دہلی چلے گئے. اور دہلی جانے کے بعد ساتھیوں دہلی جانے کے بعد تصنیف و تالیف کی دنیا میں مشغول ہو گئے. 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا. 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا تو کانپور کے مدارس سے بھی استعفا دے کر دہلی چلے گئے اور تصنیف و تالیف کی دنیا میں مشغول ہو گئے. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا تھا. کب آیا تھا؟ 1857 عیسوی میں غدر کا واقعہ پیش آیا تو کانپور کے مدارس سے بھی استعفا دے کر دہلی چلے گئے اور تصنیف و تالیف کی دنیا میں مشغول ہو گئے. ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تصنیف میں میرات العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا. ساتھیوں یہ ناول ہے میرات العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا. ساتھیوں اسی طریقے سے بنات الناس 1872 عیسوی میں شائع ہوا. اس ناول کے اندر میں ساتھیوں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے. بنات الناس جو ناول ہے اس کے اندر میں عورتوں کی تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے. ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 1872 عیسوی میں بنات الناس شائع ہوا. ساتھیوں اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے. میرات العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا. 1872 عیسوی میں بنات الناس شائع ہوا. ساتھیوں ڈپٹی نذیر احمد ہمارے نصاب کے اندر میں ایک ناول نگار کی حیثیت سے شامل ہے. ان کے ناول میں ساتھیوں میرات العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا جس کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے. ساتھیوں میرات العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوا جو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا ناول ہے. ساتھیوں اسی ناول کو اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں 1872 عیسوی میں بنات الناس شائع ہوا. ساتھیوں 1872 عیسوی میں ایک ناول اور شائع ہوا جس کا نام تھا بنات الناس. ساتھیوں اس ناول کے اندر میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے وہ کون سے ناول ہیں جس کے اندر میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے تو ساتھیوں اس ناول کا نام بنات الناس ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے بنات الناس کب شائع ہوا کب شائع ہوا تو 1872 عیسوی میں. میرات العروس کب شائع ہوا 1869 عیسوی میں. ساتھیوں اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے 1877 عیسوی میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے ایک اور ناول شائع ہوئے جس کا نام توبۃ النصوح ہے. ساتھیوں توبۃ النصوح بہت ہی مقبول ہوا. ساتھیوں اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. بہت مشہور یہ کتاب ہے, ناول کی کتاب ہے. ساتھیوں ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی تخلیق ہے. 1877 عیسوی میں شائع ہوا ناول توبۃ النصوح.
मनसूख। साथियों 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला शाये हुआ। 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला हुआ। 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला शाये हुआ। साथियों 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला शाये हुआ। डिप्टी नजीर अहमद साहब की ये भी तख्लीक है। साथियों आखिरी तख्लीक 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला शाये हुआ, ये भी एक नाविल है। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब का आखिरी नाविल डिप्टी नजीर अहमद साहब का आखिरी नाविल रोयाए सादिका है, जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ था। साथियों आप इस बात को अपने ज़हन में बिठाएंगे कि डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल का नाम क्या है? रोयाए सादिका। डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल का नाम क्या है? रोयाए सादिका। ये कब शाये हुआ? 1884 ईस्वी में। कब शाये हुआ? 1884 ईस्वी में। मिरातुल उरूस कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में। बनातुन नाश कब शाये हुआ? साथियों 1872 ईस्वी में। बनातुन नाश कब शाये हुआ? 1872 ईस्वी में। इसी तरीके से साथियों रोयाए सादिका जो आखिरी नाविल है, ये कब शाये हुआ? 1884 ईस्वी में। रोयाए सादिका जो डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल है, 1884 ईस्वी में शाये हुआ। साथियों इसी तरीके से आप याद रखेंगे 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला शाये हुआ, जो डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाविल है। साथियों 1885 ईस्वी में फसाना मुबतला शाये हुआ, जो डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाविल है। अभी मैं आपको साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब की पैदाइश के बारे में बताया। 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरिएटर में। साथियों डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को कहाँ पर हुई थी? जिला बिजनौर के परगना। साथियों जिला बिजनौर के परगना की बस्ती कोरिएटर में हुई थी। साथियों अगर कोई आपसे पूछे डिप्टी नजीर अहमद साहब की वफात कब हुई? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को 74 साल की उम्र में इनकी वफात हो गई थी। अगर पैदाइश से मुतालिक कोई पूछे डिप्टी नजीर अहमद साहब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो साथियों जिला बिजनौर के अंदर। नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरिएटर में हुई थी। साथियों आप याद रखेंगे डिप्टी नजीर अहमद साहब की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरिएटर में हुई थी। अगर वफात के बारे में कोई पूछे तो 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को, यानी 74 साल की उम्र में हुई। डिप्टी नजीर अहमद साहब के वालिद का नाम सआदत अली था। डिप्टी नजीर अहमद साहब के वालिद का नाम सआदत अली था और नाना का नाम गुलाम अली शाह। डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाना एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे साथियों, जिनका नाम काजी गुलाम अली शाह था। जिनका नाम काजी गुलाम अली शाह। वालिद का नाम सआदत अली था। वालिद का नाम सआदत अली, जिनसे साथियों इन्होंने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की थी। डिप्टी नजीर अहमद ने अपने वालिद से ही इब्तदाई दौर में अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। मौलवी नसरुल्लाह से अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। डिप्टी नजीर अहमद ने मौलवी नसरुल्लाह से अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। याद रखेंगे आप डिप्टी नजीर अहमद साहब 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए। डिप्टी नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1953 ईस्वी तक साथियों दिल्ली में मुकीम रहे। इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है। डिप्टी नजीर अहमद 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे। याद रखेंगे साथियों आप 1845 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद साहब दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में ही मुकीम रहे। साथियों इसी दौरान उनकी शादी हो जाती है। इसी दौरान डिप्टी नजीर अहमद साहब की शादी मौलवी अब्दुल खालिक साहब की पोती से हो जाती है। इसी दौरान डिप्टी नजीर अहमद की शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से हो जाती है। मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से इनकी शादी हो जाती है और 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो जाता है। 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो जाता है। साथियों फिक्र माश जब दामन गिरी हुई तो वह उसूल माश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपए माहवार पर मुअल्लिमी के फराइज अंजाम देने लगे। इस मुलाजिमत से मुतमईन नहीं थे। साथियों इस मुलाजिमत से मुतमईन नहीं थे तो इस्तीफा दे दिया और कानपुर में मदारिस में इंस्पेक्टर हो गए। साथियों और कानपुर के मदारिस में जाकर डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए और कानपुर के मदारिस में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। साथियों यहाँ पर भी मुतमईन नहीं थे तो साथियों यहाँ पर भी इस्तीफा दे दिए और दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद साथियों तसनीफ और तालीफ की दुनिया में मशगूल हो गए। उस वक्त साथियों 1857 का गदर शुरू हो गया था। 1857 ईस्वी में गदर का वाकया पेश आया तो इस्तीफा देकर साथियों दिल्ली से कानपुर चले। 1857 ईस्वी में गदर का वाकया पेश आया तो साथियों कानपुर से इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए और तसनीफ और तालीफ की दुनिया में मशगूल हो गए। याद रखेंगे साथियों इस इबारत को। 1857 ईस्वी में गदर का वाकया पेश आया तो इस्तीफा देकर साथियों कानपुर के मदारिस से इस्तीफा देकर 1857 ईस्वी में गदर का वाकया पेश आया तो
कानपुर के मदारिस से, जहां पर डिप्टी नजीर अहमद साहब डिप्टी इंस्पेक्टर के ओहदा पर फाइज थे। 1857 ईस्वी में जब गदर का वाकया पेश आया तो कानपुर के मदारिस से इस्तीफा देकर दिल्ली चले गए। साथियों आप याद रखेंगे, कानपुर के मदारिस से इस्तीफा देकर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए और तसनीफ व तालीफ की दुनिया में मशगूल हो गए। याद रखेंगे साथियों, डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। साथियों आप इस बात को अपने ज़हन में बिठा लीजिए, डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। इनकी लिखी हुई नाविल साथियों मीरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया गया है। साथियों मीरातुल उरूस कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में। मीरातुल उरूस कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में। बनातुन नाश कब शाये हुआ? 1872 ईस्वी में। बनातुन नाश कब शाये हुआ? 1872 ईस्वी में। इसी तरीके से साथियों रोयाए सादिका जो डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल है साथियों, ये 1884 ईस्वी में शाये हुआ। 1884 ईस्वी में शाये हुआ। आप इस बात को याद रखेंगे साथियों। फसाना मुब्तला 1885 ईस्वी में शाये हुआ। साथियों यह नाविल डिप्टी नजीर अहमद साहब का है। डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाविल साथियों फसाना मुब्तला 1885 ईस्वी में शाये हुआ। इसी तरीके से साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं। मैं आपको याद दिलाऊं साथियों, डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं। मैं 6 का नाम, डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं, आप याद रखेंगे। डिप्टी नजीर अहमद साहब के डिप्टी नजीर अहमद साहब की तसनीफ में मीरातुल उरूस डिप्टी नजीर अहमद साहब की तसनीफ में मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ। मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ। 1872 ईस्वी में बनातुन नाश शाये हुआ। 1872 ईस्वी में बनातुन नाश शाये हुआ। साथियों इस नाविल में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इस नाविल में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। 1877 ईस्वी में तौबतुन नसूह शाये हुआ। डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफ में मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ। मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ। साथियों मीरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया गया है। 1869 ईस्वी में मीरातुल उरूस शाये हुआ। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। साथियों इनका लिखा हुआ नाविल 1869 ईस्वी में शाये हुआ, जिसका नाम था मीरातुल उरूस। इस नाविल को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। साथियों आप ज़हन में बिठा लें, मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ और 1872 ईस्वी में बनातुन नाश शाये हुआ। इस नाविल के अंदर में साथियों इस नाविल में तालीम पर खास जोर दिया गया है। और 1877 ईस्वी में तौबतुन नसूह शाये हुआ। साथियों तौबतुन नसूह नाविल बहुत मशहूर हुआ, लोगों ने इस नाविल को बहुत पसंद किया। 1877 ईस्वी में नाविल तौबतुन नसूह शाये हुआ और 1885 ईस्वी में नाविल फसाना मुब्तला शाये हुआ। 1885 ईस्वी में नाविल फसाना मुब्तला शाये हुआ। साथियों और आखिरी नाविल 1884 ईस्वी में शाये हुआ, जिसका नाम रोयाए सादिका है। 1885 ईस्वी में रोयाए सादिका नाविल शाये हुआ। साथियों और 1885 ईस्वी में नाविल रोयाए सादिका शाये हुआ। 1884 ईस्वी में नाविल रोयाए सादिका शाये हुआ। साथियों ये नाविल डिप्टी नजीर अहमद साहब का आखिरी नाविल है। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की जात से कि आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। साथियों आज के क्लास के अंदर मैं आपको डिप्टी नजीर अहमद के बारे में बता रहा हूँ, जो हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में एक नाविल निगार की हैसियत से शामिल है। साथियों इनका लिखा हुआ नाविल डिप्टी नजीर अहमद साहब का नाविल फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू नाम से हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है। साथियों आप याद रखेंगे डिप्टी नजीर अहमद साहब का नाविल फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के नाम से एक नाविल हमारी निसाबी किताब दरख्शाह सादोम के अंदर में शामिल है। मैं आप तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर पहली मरतबा जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो साथियों दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नए नए वीडियोस आपके लिए अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों इस वीडियो को मजीद शेयर कर दें ताकि मजीद तलबा इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। साथियों आज की क्लास के अंदर मैं आपको डिप्टी नजीर अहमद के बारे में बता रहा हूँ। डिप्टी नजीर अहमद साहब की पैदाइश कब हुई थी?
6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अंदर में साथियों अफजलगढ़ परगना की बस्ती कुरिएटर में हुई थी। कहाँ पर साथियों? अफजलगढ़ परगना की बस्ती कुरिएटर में हुई थी। साथियों आप याद रखेंगे डिप्टी नजीर अहमद साहब की वफात कब हुई थी? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। डिप्टी नजीर अहमद साहब की वफात कब हुई थी? 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को। डिप्टी नजीर अहमद साहब की वफात 28 दिसंबर 1910 ईस्वी को हुई थी। साथियों 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। 13 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया। इसी तरीके से आप याद रखेंगे साथियों वालिद का नाम सादत अली था। डिप्टी नजीर अहमद साहब के वालिद का नाम सादत अली था। साथियों इसी तरीके से नाना का नाम गुलाम अली शाह, नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह था। डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह था। साथियों जो अपने वक्त के बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। साथियों आप याद रखेंगे डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफ में साथियों मैंने आपको बताया मीरातुल उरूस, मीरातुल उरूस जो 1869 ईस्वी में शाये हुआ, जिसको उर्दू का पहला नाविल तस्लीम किया जाता है। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब का नाविल मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ, जिसको उर्दू का पहला नाविल तस्लीम किया जाता है। और डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब को उर्दू का अव्वलीन नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद साहब का एक नाविल शाये हुआ, जिसका नाम है साथियों मीरातुल उरूस है। मीरातुल उरूस है 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद साहब का एक नाविल शाये हुआ साथियों, जिसका नाम मीरातुल उरूस है, जिसका नाम मीरातुल उरूस है। 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद साहब का एक नाविल शाये हुआ, जिसका नाम मीरातुल उरूस है, जिसका नाम मीरातुल उरूस है। साथियों इसी तरीके से 1872 ईस्वी में नाविल बनातुन नास शाये हुआ, जिसके अंदर में तालीम पर खास जोर दिया गया है, जिसके अंदर तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इसी तरीके से साथियों 1877 ईस्वी में नाविल तौबतुन नसूह शाये हुआ। इसी तरीके से 1877 ईस्वी में नाविल तौबतुन नसूह शाये हुआ। साथियों आप याद रखेंगे नाविल तौबतुन नसूह कब शाये हुआ? 1877 ईस्वी में। साथियों यह नाविल बहुत मशहूर व मकबूल है। इसी तरीके से साथियों 1885 ईस्वी के अंदर में नाविल फसाना मुब्तला शाये हुआ। 1885 ईस्वी में नाविल फसाना मुब्तला शाये हुआ। और 1884 ईस्वी के अंदर साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल रोयाए सादिका शाये हुआ। डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल का क्या नाम है? रोयाए सादिका, जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ। साथियों मैं आपको बताऊं नाविल मीरातुल उरूस के दो किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार है। साथियों नाविल मीरातुल उरूस के दो किरदार अकबरी और असगरी आज भी जिंदा किरदार है। साथियों इसको जिंदा किरदार माना जाता है। नाविल मीरातुल उरूस के दो किरदार अकबरी और असगरी अब भी जिंदा किरदार है। नाविल मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ, जिनको उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। साथियों नाविल मीरातुल उरूस को उर्दू का पहला नाविल करार दिया जाता है। नाविल बनातुन नास में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इस नाविल का एक किरदार असगरी खानम तालीमी निस्वा को आम करती हैं। साथियों 1872 ईस्वी में नाविल बनातुन नास शाये हुआ। साथियों इस नाविल के अंदर में तालीमी निस्वा पर खासा जोर दिया गया है, औरतों की तालीम पर, ख्वातीन की तालीम पर खासा जोर दिया गया है। साथियों नाविल बनातुन नास में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इस नाविल का एक किरदार असगरी खानम है। इस नाविल का एक किरदार असगरी खानम है साथियों, जो तालीमी निस्वा को आम करती हैं। बनातुन नास में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इस नाविल का एक किरदार असगरी खानम तालीमी निस्वा को आम करती हैं। साथियों आप याद रखेंगे तालीमी निस्वा को आम करती हैं। नाविल बनातुन नास में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इस नाविल का एक किरदार असगरी खानम तालीमी निस्वा को आम करती है। साथियों नाविल बनातुन नास में तालीम पर खासा जोर दिया गया है। इस नाविल का एक किरदार असगरी खानम तालीमी निस्वा को आम करती हैं। साथियों औरतों की तालीम को, ख्वातीन की तालीम को आम करती हैं। साथियों बनातुन नास कब शाये हुआ? 1872 ईस्वी में। नाविल मीरातुल उरूस कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में। नाविल तौबतुन नसूह कब शाये हुआ? 1877 ईस्वी में। नाविल तौबतुन नसूह कब शाये हुआ? 1877 ईस्वी में। नाविल तौबतुन नसूह कब शाये हुआ? 1877 ईस्वी में, जो फनी एतबार से कदर बेहतर है। साथियों आप याद रखेंगे नाविल तौबतुन नसूह फनी एतबार से कदर बेहतर है। साथियों आप याद रखेंगे नाविल तौबतुन नसूह फनी एतबार से कदर बेहतर है। 1877 ईस्वी में शाये हुआ। नसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। यही ख्वाब उसकी जिंदगी में इनकलाब का बायस बनता है। नसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है।
साथियों नाविल तौबतुन नसूह के अंदर में नसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। साथियों हश्र का नक्शा देखता है, यही ख्वाब उसकी जिंदगी में इनकलाब का बाइस बनता है। इब्ने वक्त नजीर अहमद साहब के नाविलों में सबसे अहम है। साथियों अगर कोई आपसे पूछे डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कुल कितने नाविल लिखे हैं, तो डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं, जो आपके SCERT में लिखा हुआ है। डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कितने नाविल लिखे हैं? साथियों आप याद रखेंगे, डिप्टी नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं, जो आपके SCERT की किताब में लिखा हुआ है। इब्ने वक्त नजीर अहमद साहब के नाविलों में सबसे मुनफरद और अलग है। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब का एक नाविल है इब्ने वक्त, डिप्टी नजीर अहमद साहब का एक नाविल है इब्ने वक्त, जो सबसे अहम है। साथियों नजीर अहमद का आखिरी नाविल रोयाए सादिका है। रोयाए सादिका कब शाये हुआ? 1884 ईस्वी में। अगर कोई आपसे पूछे साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल का क्या नाम है, रोयाए सादिका, रोयाए सादिका कब शाये हुआ? 1884 ईस्वी में। अगर कोई आपसे पूछे डिप्टी नजीर अहमद साहब के आखिरी नाविल का क्या नाम है, रोयाए सादिका। साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब का सबसे अव्वल नाविल कौन है? मिरातुल उरूस 1869 ईस्वी में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1869 ईस्वी में। और रोयाए सादिका कब शाये हुआ? 1884 ईस्वी में। साथियों इसी तरीके से एक नाविल और है बनातुन्नास, जिसमें तालीम पर खास जोर दिया गया। साथियों बनातुन्नास 1872 ईस्वी में शाये हुआ। बनातुन्नास 1872 ईस्वी में शाये हुआ। इस नाविल के अंदर में साथियों तालीम पर खासा जोर दिया गया है, खास करके तालीमी निस्वां पर, औरतों की तालीम पर, ख्वातीन की तालीम पर खासा जोर दिया गया है। साथियों 1877 ईस्वी के अंदर में 1877 ईस्वी के अंदर में नाविल तौबतुन नसूह शाये हुआ। 1877 ईस्वी में नाविल तौबतुन नसूह शाये हुआ, जिसके अंदर में नसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। 1877 ईस्वी में नाविल तौबतुन नसूह शाये हुआ, जिसके अंदर में साथियों, जिसके अंदर में नसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। यही नक्शा साथियों, यही ख्वाब उसकी जिंदगी में इनकलाब का बाइस बन जाता है। नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं। साथियों नजीर अहमद साहब ने कुल कितने नाविल लिखे हैं? मिरातुल उरूस, नजीर अहमद साहब ने कुल 6 नाविल लिखे हैं। मिरातुल उरूस, बनातुन्नास, तौबतुन नसूह, इब्ने वक्त। साथियों इब्ने वक्त, रोयाए सादिका, साथियों इसी तरीके से तौबतुन नसूह, फसाना मुब्तला वगैरह साथियों डिप्टी नजीर अहमद साहब के नाविल हैं। साथियों अब मैं आपको चंद नाविल और उसके लिखने वाले नाविल निगार के बारे में बता रहा हूँ। शाद अजीम वादी का नाविल सूरतुल ख्याल है। शाद अजीम वादी के नाविल का नाम क्या है? सूरतुल ख्याल। हाली के नाविल का नाम मजालिसुन निसा है। हाली के नाविल का नाम मजालिसुन निसा है। रशीदतुन निसा, साथियों रशीदतुन निसा के नाविल का नाम इस्लाहुन निसा है। इसी तरीके से साथियों मिर्जा हादी रुस्वा का नाविल, मिर्जा हादी रुस्वा का नाविल क्या है? उमराव जान आदा। मिर्जा हादी रुस्वा का नाविल उमराव जान आदा। मुंशी प्रेमचंद के नाविल साथियों गौदान, मैदान अमल तक 15 नाविल इसके उम्दा नमूने हैं। मुंशी प्रेमचंद के नाविल गौदान, मैदान अमल तक 15 नाविल इसके उम्दा नमूने हैं। मुंशी प्रेमचंद के नाविल गौदान, मैदान अमल तक 15 नाविल इसके उम्दा नमूने हैं। साथियों इसी तरीके से एक बहुत मशहूर नाविल है लंदन की एक रात। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का लिखा हुआ यह नाविल है साथियों, जिसके बारे में कहा जाता है कि सज्जाद ज़हीर साहब ने एक रात में ही इस नाविल को मुकम्मल कर दिया था। साथियों लंदन की एक रात नाविल किसने लिखा? सज्जाद ज़हीर साहब का नाविल है लंदन की एक रात। साथियों मैं आपको फिर से बता दूं, शाद अजीम आबादी का नाविल सूरतुल ख्याल है। शाद अजीम आबादी का नाविल सूरतुल ख्याल है। हाली का नाविल मजालिसुन निसा है। हाली का नाविल मजालिसुन निसा है। इसी तरीके से साथियों रशीदतुन निसा का नाविल इस्लाहुन निसा है। साथियों 20वीं सदी के इब्तिदा में उर्दू नाविल के नए अहद का आगाज हुआ था। आप इस बात को अपने ज़हन में बिठा लेंगे, 20वीं सदी के इब्तिदा में उर्दू नाविल के नए अहद का आगाज हुआ था। साथियों मिर्जा हादी रुस्वा का नाविल उमराव जाने अदा है। मिर्जा हादी रुस्वा का नाविल उमराव जाने अदा है। मुंशी प्रेमचंद के नाविल गौदान, साथियों ये नाविल गौदान बहुत मशहूर और मकबूल हुआ। साथियों बहुत शोहरत पाया। मैदान अमल तक 15 नाविल इसके उम्दा नमूने हैं। सज्जाद ज़हीर का नाविल साथियों लंदन की एक रात। साथियों सज्जाद ज़हीर का ये बहुत मशहूर नाविल है लंदन की एक रात। सज्जाद ज़हीर का नाविल लंदन की एक रात, लंदन की एक रात बहुत मशहूर नाविल है साथियों, जिसके बारे में कहा जाता है कि सज्जाद ज़हीर साहब ने एक रात में इसको मुकम्मल कर दिए थे। साथियों अब मैं आपको चंद नाविल निगार का नाम बता रहा हूँ। नजीर अहमद, शाद अजीम वादी, हाली, रशीदतुन निसा, पंडित रतननाथ सरसार, मिर्जा हादी रुस्वा, प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, कृष्णचंद, असमत चोगताई वगैरह। साथियों इम्तहानात के अंदर में कभी कभी आपसे नाविल निगार के बारे में पूछ लिया जाता है, तो कभी अफसाना निगार के बारे में, तो कभी
مرثیہ نگار کے بارے میں۔ ساتھیوں امتحانات کے اندر میں کبھی کبھی آپ سے مرثیہ نگار کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، ساتھیوں کبھی کبھی افسانہ نگار کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، تو کبھی کبھی غزل گو شعرا کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو ساتھیوں کبھی کبھی ناول نگار کے بارے میں۔ تو میں آپ کو چند ناول نگار کا نام بتا رہا ہوں انشاءاللہ العظیم۔ میں ابھی آپ کو ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ ساتھیوں ڈپٹی نذیر احمد صاحب اردو کے ایک بہت بڑے ناول نگار ہیں۔ نذیر احمد صاحب سعد عظیم آبادی، حالی، رشیدۃ النساء اور پنڈت رتن ناتھ شرسار، مرزا ہادی رسوا، پریم چند، سجاد ظہیر، کرشن چند، عصمت چغتائی وغیرہ ناول نگار ہیں۔ ساتھیوں ان کا نام آپ یاد کر لیجئے۔ ناول نگاروں میں نذیر احمد، شاد عظیم آبادی، حالی، رشیدۃ النساء، پنڈت رتن ناتھ شرسار، مرزا ہادی رسوا، پریم چند، سجاد ظہیر، کرشن چند، عصمت چغتائی وغیرہ ساتھیوں قابل ذکر ہیں۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ ساتھیوں میں آپ کو مزید علم کے لیے بتاؤں، اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ساتھیوں ڈپٹی نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ یاد رکھیں گے آپ، اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں، اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ ساتھیوں آپ اس بات کو یاد رکھیں گے، اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں نذیر احمد کا نام سر فہرست ہے۔ ناول مغربی ادب کی دین ہے۔ ساتھیوں ناول مغربی ادب کی دین ہے۔ اردو کی نثر ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ اردو کی نثر ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ برطانیہ کی خاتون ادیبہ کلارا دیوز نے ناول کی تعریف اس طرح کی ہے۔ برطانیہ کے خاتون ادیبہ کلارا دیوز نے ناول کی تعریف اس طرح سے کی ہے: ناول اس زمانے کی، اس زندگی کی اور معاشرے کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ گویا ناول نگاری کا مقصد حقیقی زندگی اور اس کے ماحول کی ترجمانی سچے طور پر کرنا ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے کلارا دیوز کی تعریف کیا ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے ناول مغربی ادب کی دین ہے۔ ناول مغربی ادب کی دین ہے۔ اردو کی نثر ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ اردو کی نثر ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ برطانیہ کی خاتون ادیبہ کلارا دیوز ناول کی تعریف اس طرح سے کرتی ہیں: ناول اس زمانے کی، زندگی کی اور معاشرے کی سچی تصویر ہے۔ ساتھیوں اس زمانے کی، زندگی کی اور معاشرے کی سچی تصویر کو پیش کرتا ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ گویا ناول نگاری کا مقصد حقیقی زندگی اور اس کے ماحول کی ترجمانی سچے طور پر کرنا ہے۔ ساتھیوں اب میں آپ کو ناول کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ العظیم آپ غور سے سنیں گے۔ ساتھیوں آپ اسے یاد رکھ لیں گے۔ ناول کے اجزاء ترکیبی: پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان۔ ساتھیوں ناول کے اجزاء ترکیبی یاد رکھ لیں گے آپ: پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات نگاری، فلسفہ حیات، زبان۔ ساتھیوں یہ ناول کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے کہ میں نے جو ابھی آپ کو سمجھایا ڈپٹی نذیر احمد صاحب کے بارے میں انشاءاللہ العظیم آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے پھر مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ساتھیوں ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھیوں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی آپ کے لیے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھیوں اس ویڈیو کو مزید شیئر کر دیں تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، ساتھیوں جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص SCTRE 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، یہ کلاس آپ کے لیے کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھیوں اس کلاس میں ساتھیوں آپ کو جو مواد دکھائے گئے ہیں، یہ مواد جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں، ساتھیوں یہ سارے مواد SCERT پر مشتمل ہے۔ یہ سارے مواد SCERT پر مشتمل ہے جو امتحانات کے نظریہ سے کافی اہم ہے۔ ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معاون اور معالی ثابت ہوگا۔ ساتھیوں اب دیجیے اجازت، کل پھر ملتا ہوں نئے ویڈیوز کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔